Okay, I'm sharing my screen. Let me know whether it is visible to you. Okay. Is it visible, right, everyone? बताइए मुझे, दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. Okay. So earlier in last class, in third class, we have seen all the important years where some, you can say, commission or some establishment of colleges have been uh, made up by the Britishers. Now, one of the important year is 1854. I stressed yesterday also. This is Sir Charles Wood Dispatch that was known as Magna Carta of English Education in India. All right, which recommended to create, a articulated scheme of education from primary to the university. तो जो मेन ईयर जो बाकी भी मेन ही है जो मैंने इसमें पीपीटी में डाले हैं, लेकिन जो खास है वो है 1854 का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत टाइम से जो है ये इम्पोर्टेंट रहा है और कई बार पूछा जा चुका है। इसको टेबल फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, बहुत सारे ईयर्स दे देंगे और फिर जो जो मेन चीज़ें उस ईयर में हुई हैं वो एक दूसरे कॉलम में दे देंगे और फिर मैच करने को आपको बोल सकते हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था ये 1854 में आया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट जिसपे कि आगे के जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी काम होना है वो उसके थ्रू होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसपे बेस्ड आगे की चीजें होती हैं। मैग्ना का मतलब ही होता है अ ग्रेट और अ पावरफुल, and carta means some document or some written uh, thing which is very very important. uh, Government document, you can say a government letter or government uh, particular you can say article which is very very important. So this is the important year, and again 1857, the establishment of University of Calcutta, University of Bombay, University of Madras, based on these Wood Dispatch. And the first university which was established by the Swadeshi nationalist leader was on during the year 1905. And 1904, based on this Indian University Act, which was passed in the year 1904, 1904, याद रखेंगे इसको कि 1904 में यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ और उसके अंदर जो है वो 1905 में जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो बनी। Now, in 1917, Sadler Commission, which is again a important commission, important year 1917, and this commission is popularly known as Calcutta University Commission, and this commission suggested the separation of intermediate education from the degree college. So, you can say in present system we are having 10 plus 2 plus 3 system, so you can say it was a precursor of this system. And this commission is responsible for setting up of CABE. Again, it is a very important board of education, Central Advisory Board of Education, which was established in 1917 under the recommendation of Sadler Commission. In 1920, this was established
and dissolved in 1923, and again it is revived in 1935. So this CABE is revived again in 1935 because of some reason they dissolved it in 1923. In 1925, IUB, that is the Inter-University Board, which was later known as AIU, that is the Association of Indian Universities, was established. And in 1929, Hartog Commission, uh, which focused on the quality and standards of the education system within India. And in 1934, again a committee, which is SAPRU committee, focused upon the unemployment issues within the country. In 1934, SAPRU commission. All right. And again, this in 1937, the Abbott Wood report recommended English as a medium of instruction at university level. जो पहले हमने पढ़ा था मैकॉले का, वो प्रिलिमिनरी एजुकेशन सिस्टम के लिए इंग्लिश मीडियम उन्होंने बोला. एंड इन 1937 वुड रिपोर्ट recommended English as a medium of instructions at university level. And Vardha Scheme of Education in 1937 recommended Nai Talim or Basic Education, and it was recommended by Mahatma Gandhi. इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार. 1917 में सैडलर कमीशन आया, जिसको कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला गया बाद में. और इन्होंने ये कहा कि जो इंटरमीडिएट जो एजुकेशन है उसको डिग्री कॉलेज से अलग किया जाए. मतलब 1 साल आप स्कूल में ही पढ़ो और फिर आप कॉलेज में जाओगे. तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक तरह से 10+2+3 जो सिस्टम है अभी हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में है, उसका एक पहले वाला वर्जन है, जिसमें कि 10th तक का आपका हाई स्कूल होगा, फिर हाई सेकेंडरी स्कूल होगा 11th और 12th, और उसके बाद में 3 साल का जो है वो ग्रेजुएशन होगा. और कुछ कॉलेजेस जो हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उसमें 4 और 4.5 साल का भी जो है स्नातक डिग्री जिसे बोलते हैं हम, बैचलर्स डिग्री, वो होगी. उसके बाद में इसी सैडलर कमीशन पे बेस्ड CAB बना 1920 में, जिसको कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहा जाता है. और यही एक बॉडी था जो एडवाइजरी बॉडी था गवर्नमेंट का, जो ये बताता था, एडवाइस करता था एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि पॉलिसी बनाना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. ये मतलब एक बोर्ड था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज इट इज द एडवाइजरी बोर्ड. तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये डिसॉल्व हो गया 1923 में, इसको खत्म कर दिया और फिर से इसको दोबारा से जो है रिवाइव किया गया, दोबारा से इसको बनाया गया कुछ और इम्प्रूवमेंट के साथ में, कुछ नई पॉलिसीज के साथ में 1935 में. 1925 में एक जो है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया, जिसको कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी कहा गया बाद में. और एक कमीशन आया 1929 में, जो ये जिसका काम ये था कि क्वालिटी जो है, स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का, उसके बारे में ये फोकस करता था, उसको ध्यान में रखता था, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कैसी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए. तो उस कमीशन ने का काम ये था. 1934 में सप्रू कमेटी आई, जिसने कि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो थे कंट्री में, उसके बारे में बात की, बताया गवर्नमेंट को कि भाई इतना इतना पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं. फिर 37 में वुड रिपोर्ट, अबाउट वुड रिपोर्ट आई, जिसने कि कहा कि इंग्लिश जो है वो मीडियम होना चाहिए पढ़ाई का यूनिवर्सिटी लेवल पे. फिर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया 1937 में. 1937 में 2 इम्पोर्टेंट चीजें हुई.
वुड रिपोर्ट और वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम जो एजुकेशन है वो महात्मा गांधी के रिकमेंडेशंस पे जो है वो आई थी, और इसको कहा गया नई तालीम और बेसिक एजुकेशन। तो इतना चीज़ें जो हैं याद रखने की कोशिश हम करेंगे। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो करीब करीब खत्म हो रहा था, तो उसके बाद में फिर से इनका ध्यान इस तरफ गया। एंड the Sargent report, which came into existence in 1944, it is also known as Scheme of Post-War Educational Development in India. And its recommendations was setting up of UGC, which we call now the term UGC, that is University Grant Committee. And after independence, Government of India took several initiatives to improve and promote higher education in the country. And modern education after independence, the first committee, a very important committee, was Radhakrishnan Commission, which was during the period 1948 to 49, took 1 year, and this is also known as University Education Commission, because the chairperson for this commission was Dr. Radhakrishnan, so that it is also called Radhakrishnan Commission. And this commission suggested the integration of secondary education and higher education by setting up a UGC. So this controlling, you can say, or the board for the education system, there are 4-5 councils: UGC, AICTE, NCI, and Bar Council were established under the section 66. So section is not that much important, but yes, you should remember the name of the commission and what the commission meant for. What is the main idea, or what is the main uh, focus of that commission was. That you should remember. Now, on 28th of December 1953, Shri Maulana Abdul Kalam Azad, that time Minister of Education, inaugurated UGC. So this is again a important year, important date. Then Mudaliar Commission, which was during the year 52 to 53. It is also popularly known as Secondary Education Commission, which recommended the introduction of 3-year secondary and 4-year higher education system. Because it also advocate, setting up of multi-purpose schools and some vocational training institutions within the country. तो थोड़ा सा हम हिंदी में देख लेते हैं इसको कि 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, और इन्होंने फिर से रिवाइव किया एजुकेशनल सिस्टम को। तो जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है इंडिया में, उसको रिकमेंड किया कि इसके लिए यदि आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो कोई एक ऐसी कमेटी होना चाहिए जो इस पे वॉच रखे, एक ही कमेटी। तो उन्होंने इसको मतलब ये कह सकते हैं कि जो आज हम यूजीसी कहते हैं उसका सेटिंग अप जो है 1944 में हुआ था। स्टार्टिंग बेस जो है वो तब बना था। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे कि किस तरह, और मेन जो चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, वो है एजुकेशन। यदि एजुकेटेड नहीं है पब्लिक या सिटीजन किसी भी कंट्री के, तो ये जो है बहुत ही निगेटिव है, बहुत ही कंट्री को नीचे की तरफ लेके जाता है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के नागरिकों का पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए।
उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो था कि सभी के लिए है, कंपलसरी है, लेकिन हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना, वहाँ से जो है नई दिशाएं खुलती हैं किसी भी कंट्री को प्रॉस्परस बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, चाहे वो कल्चरल फील्ड में हो, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड में हो, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कोई भी सेक्टर हो, कॉमर्स हो, तो हर चीज़ के लिए हायर एजुकेशन का बहुत अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राधा कृष्णन कमीशन आया, जो कि 1948 1948 49 में आया, जिसको कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला गया। और इन्होंने जो है सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है उसके लिए यूजीसी को अच्छी तरह से, एक तरह से स्ट्रक्चर दिया, एक तरह से कहना चाहिए। और जो बोर्ड हैं जो हायर एजुकेशन को संभालते हैं, उसके लिए 4 काउंसिल्स बनाई। उनमें एक यूजीसी है, एक एआईसीटीई है, एक एमसीआई है और एक बार है। जो यूजीसी है वो कहना चाहिए हेड है सबका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और एआईसीटीई जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, एमसीआई जो है वो मेडिकल एजुकेशन के लिए है, और बार जो है वो लॉ के लिए है। तो ये इस्टेब्लिश हुए इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे। और 28 दिसंबर 1953 में जो मौलाना आज़ाद कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उस समय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था यूजीसी का। फिर आया मुदलियर कमीशन 52-53 में, जिसको कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा गया। इन्होंने जो है वो 3 साल का सेकेंडरी एजुकेशन और 4 साल का हायर एजुकेशन सिस्टम रिकमेंड किया। फिर in 1961, right, in 1961 there was a committee on emotional integration under the chairmanship of Dr. Sampurnanand, to study the role of educational programs for youth and students in school and colleges in order to strengthen the process of emotional integration. Emotional integration means your moral values, all right? And there should be no cheating, or no fraud in the educational system. So they set up some recommendations, and students should remember that in 63 there was a decision by the Gujarat University to make Gujarati the sole medium of instruction and examination, but it was taken back after a court decision. No, this is not the right way. All right, there should be some education in the most of the states. There should be, the medium of education will be more or less same. It should not be like religion or based, or region based, or state based. Yes, preliminary education is fine, but the higher education, there should be uniqueness in the language. And then there was again an important commission which is called Kothari Commission, which came in 1964 to 66, and the commission was titled as Education and National Development Report. It is very progressive report, and it is proposed 3-year degree course and a 4-year honors degree course. And there was establishment of Indian Education Service, which we call IES, to improve the quality of Indian higher education. And it recommended that 6% of the national income should be spent on education. This is a very good recommendation. At least 6% of the national income should be spent on education system.
Then there is a National Council for Teachers Training in 1973, and it was set up by the government and as a national expert body to advise central and state government on all the matters pertaining to teachers education. And this council was made, uh, you can say, a statutory body by the Act of Parliament in 1993. So for the training, it is uh, establishment of National Council for Teacher Training. And in 1976, there is education subject in concurrent list. And through this entry of 25, which is the 42nd constitutional amendment in the concurrent list of Constitution of India, and the center was also given the responsibility along with the states for all levels of education. So, as we know, India has a federal setup, right? We have a central government which has certain powers, certain, you can say, hold on the state government as well. And education is a responsibility for both centers as well as state. But education, especially the university education, was was the responsibility of the state, while the center was given the function of just coordination and determination of the standards. So they have to follow certain rules and regulations, whether it is a school or a university, whether it is a state university, deemed university, any university, they have to follow some rules and regulations set up by the central government. And means there should be a proper coordination between the two governments, you can say. तो एक जो कमिटी है वो बनी इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए 1961 में, और इसकी चेयरमैनशिप की डॉक्टर संपूर्णानंद ने। और इन्होंने जो है स्टडी किया कि जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि एक बच्चा बड़ा हो जाता है ना, टीन एज से बड़ा हो जाता है, टीन एज में आता है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, सोचने के तरीके में। तो जो प्रोसेस है इमोशनल इंटीग्रेशन का, उसको स्ट्रेंथ किया जाए, जो उसके भावनात्मक विकास उसका होना चाहिए, है ना, कुछ वैल्यूज का डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए कि क्या अच्छा क्या बुरा, ये सोचने समझने की शक्ति, कैसे बोलना है आपको, क्या वैल्यूज आपको फॉलो करना है क्लास में। क्योंकि आप बड़े हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो बिहेव करते हैं वही सही है। तो उसके लिए भी और ऐसा हमेशा सही नहीं होता है, तो उसको एक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए ये जो कमेटी ने काम किया। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट कमीशन आया 64-66 में, जिसको कोठारी कमीशन कहा गया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो टाइटल था इस कमीशन का वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि शिक्षा और शिक्षा से कैसे देश का विकास हो। तो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी, इसमें बहुत सारे कोर्सेज जो हैं 3 ईयर 4 ईयर के, वो उन्होंने प्रपोज किए। और एक आईईएस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसको इन्होंने बनाया, जो कि इंडियन एजुकेशन सर्विसेज थी, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को, उसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए। और इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि 6% जो है नेशनल इनकम का, बजट का, जो कि नेशनल इनकम है, जो कि राष्ट्रीय कहना चाहिए आमदनी है, उसका 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। फिर 1973 में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक जो है काउंसिल बना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, एनसीटीई,
क्योंकि टीचर की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रॉपरली ट्रेन टीचर्स होंगे तो वो बच्चों को अच्छी तरह से 100% जो भी उनको आता है वो डिलीवर कर सकेंगे। उसका क्या वे होना चाहिए, किस तरह से सिखाना चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत टीचर को भी होती है। 76 में जो है एक कहना चाहिए कि एजुकेशन के लिए ही एक सेटअप किया गया, क्योंकि जो हमारी कंट्री है ये फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मतलब कि हमारा जो सेंटर है वो पावरफुल है, लेकिन स्टेट को भी कुछ अथॉरिटीज जो हैं वो दी गई हैं स्कूल कॉलेज खोलने की। लेकिन उसमें जो भी स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज खुलती हैं किसी भी यूटी में या फिर स्टेट में, उसमें रूल्स रेगुलेशन तो स्टेट के फॉलो होते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, लेकिन उसके बीच में सेंट्रल का भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर जो है समन्वयता कहना चाहिए वो होनी चाहिए। सेंट्रल के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो सेंटर को जो है जिम्मेदारी है एक तरह से कि वो सभी लेवल के एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, प्राइमरी हो और हायर एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी लेवल का भी, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट स्टेट के साथ में करना जरूरी है। हम्म, ठीक है। नाउ वेरी इम्पोर्टेंट committee, or you can say a commission, which is NPE, that is National Policy on Education, which was established in 1986. Now, the main objective of this NPE, that is the National Policy of Education of 1986, uh, and the program of action, which is came into action in 1992. It was to establish, a national system of education, which implies that all the students, irrespective of caste, creed, or sex, all right, and religion also, have access to education of a comparable quality. This is a very important thing you should remember. This recommends, or you can say it implies, this national education policy, that any student of any, irrespective of caste, creed, sex, religion, any foundation, he or she has access to education of a comparable quality. And there was emphasis on primary and secondary education. And this policy came after when the education was entered into the concurrent list in the year 1976 through the 42nd Amendment, a constitutional amendment. This is a very important uh, constitutional act, 42nd constitutional amendment. There are various amendments under this, uh, um, you can say, 42nd constitutional amendment regarding the education. And most of our classic, you can say, government schemes, such as Sarva Siksha Abhiyan, all right, midday meal, Navodaya Vidyalay, Kendriya Vidyalay, and the use of IT in education, they were all started uh, under this NEP, and that means NEP, that is National Policy of Education, 1986. Just remember this line, the first line, all right, and this policy was followed. Uh, this Kothari Commission was, followed by this NEP in 68 and 86. So emphasized on improving the quality of higher education level, and also proposed, imparting some higher education by distance learning mode,
if a particular person is not accessible to, a particular university or in any educational institution, so he can or she can educate himself or herself by distance learning, like some correspondence course during those times, because that time there was no online system like we have today. So they have to like take correspondence, and then for giving examination, they'll reach out some near centers, and they get the certification or degree. And there are some important committee reports also. The first one is Nanam Committee. Nanam Committee is basically because it was uh, uh, established by a person. Then this is the name of a person, Nanam Committee. The name of I don't remember the initial of the chairman, but the name is Nanam, and this committee recommended flexibility and autonomy for academic excellence. And that means it ensures, the academic excellence, and asked some restrictions about the unchecked growth of deemed universities. If some university, which is deemed university or private university, is not performing, they'll cancel their, the eligibility. If they are not fulfilling the eligibility criteria, they'll cancel their registration. So it emphasized the need, for the National Commission on Higher Education and Research to regulate the quality of education and to encourage the research in university system. Then there is an important committee, Sam Pitroda Committee, which was established in 2007, and popularly it is known as NKC. NKC stands for National Knowledge Commission. And this commission recommended the restructuring of the curricula to promote the excellence in higher education, and it supported the entry of foreign universities within the country, and it has recommended also to increase the number of universities to 1500 by 2015. But I don't think so key this number we attained till now. There may be like need of, opening of some more universities to fulfill this recommendation. उस एक और इम्पोर्टेंट साल है जिसको आपको याद रखना है, वो है 1986, 1986। 1986 में नेप आया। नेप इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। और इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो 92 में आया, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा इसको पूरा बनाने करने में। बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिसी में रिकमेंड की, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया कि सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। मिड डे मील इन्होंने रिकमेंड किया कि स्कूल्स में, क्योंकि कुछ बच्चे जो गाँव में हैं वो नहीं आते हैं, तो उनको एक तरह से कहना चाहिए कि अ, एक लालच दिया गया कि भई आप आओगे तो आपको यहाँ खाना मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि वो काम कौन करेगा, या वहाँ पे भेजना वेस्टेज है। तो जब उनको ये कहा कि भई खाना मिलेगा, आपको खाना नहीं बनाना है इनके लिए, पढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा-सा एक तरह से कहना चाहिए कि उनको मोटिवेट किया गया। तो उसमें से एक ये भी चीज़ थी कि मिड डे मील जो है वो दिया जाएगा। और ये कि यदि कोई बच्चा अच्छा पढ़ लेता है, तो उनको कुछ सिलेक्टेड रीजन्स में नवोदय विद्यालय खोले गए, केंद्रीय विद्यालय खोले गए, वहाँ एडमिशन मिलेगा, और वहाँ पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, स्पेशल टीचर्स उनको पढ़ाएँगे।
और वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर यूज़ ऑफ आईटी भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, है ना? और क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो ली गई, स्टार्ट की गई, जैसे कि नेट है, सेट है, जेआरएफ है, और भी बहुत सारे जो स्कॉलरशिप्स के लिए, कि ताकि आप एक एज के बाद आप जब आगे पढ़ते हो, तो आपको ये लगता है कि नहीं अब मुझे कमाना है, मैं कैसे घर वालों से माँगूँ? तो आगे की पढ़ाई के लिए आपको एक फाइनेंशियल कहना चाहिए बेस चाहिए होता है, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएँ फाइनेंशियली और आप आगे भी पढ़ सकें और उसके बाद में बहुत बेहतर जॉब आप कर सकें। तो जो हम कहना चाहिए कि कोठारी कमीशन था, उसको बेस लेकर के ये जो है स्कीम्स बनाई गई। और हायर एजुकेशन के लिए और भी बेहतरी के लिए कहना चाहिए, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को और अच्छा बनाने के लिए एक प्रपोज किया इन्होंने, हायर एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से भी आप पढ़ सकते हो। मतलब यदि आप दूर हैं, आपके अप्रोच में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं है, या कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्टेंस से भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप करस्पॉन्डेंस कोर्स ले सकते हैं। आप उनको भेज सकते हैं कि भई मैं आपकी यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो आपको कोर्स मटेरियल भेज देते हैं। वो आप पढ़ लीजिए, और फिर आस-पास के कोई सेंटर में जब वो कहते हैं, जब उनकी तरफ से ये आता है कि भई आप यहाँ जा कर के इस समय एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड उस समय नहीं था, तो डिस्टेंस लर्निंग जो है वो इस तरह से करस्पॉन्डेंस से होता था। और कभी-कभार आप जो यूनिवर्सिटी यदि कोई कॉलेज को रिकमेंड करे कि हाँ, यहाँ आकर के आप कुछ चीज़ यदि कोई डाउट्स हैं या कुछ हैं, तो वो आप वहाँ पे अपना क्लियर कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो इस तरह से डिस्टेंस लर्निंग में मतलब कि आपको रेगुलर वहाँ नहीं जाना है, ओकेजनली जब आपको एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है, डाउट्स हैं, तो अब आप करस्पॉन्डेंस से कर सकते हो। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ आईं, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आईं। तो क्योंकि उन्होंने कुछ कमिटीज़ बनी जिन्होंने एनालिसिस किया कि किस तरह से एजुकेशन चल रहा है, किस तरह से होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्या कमियाँ हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं। तो उसमें एक कमेटी थी, नानम कमेटी। ये जो नानम हैं ये चेयरपर्सन रहे हैं इस कमेटी के, इनिशियल मुझे याद नहीं है अभी। तो इन्होंने जो है ये रिकमेंड किया कि भई अ, थोड़ी-सी जो फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते थे वो, और ऑटोनॉमी जो है, मतलब एक तरह से एक पावर देना यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, वो इन्होंने जो है पेश किया कि भई आप इस तरह से थोड़ा यदि किसी रूल रेगुलेशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया जाए, थोड़े से पावर्स उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज को दे दिए जाएँ, जिससे कि एकेडमिक एक्सीलेंस हो सकता है, तो वो करना चाहिए। तो ये जो है इस कमेटी ने बताया। उसके बाद में एक सैम मतलब कमेटी आई। मैं कुल मिला-जुला कर शक्तियाँ प्रदान की जाएँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल को, इनका काम ये हाँ, था नान का। हाँ, हाँ। उसके बाद में सैम पित्रोदा कमेटी आई, जो कि 2007 में बनी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है। इसको ही जो है वो नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी कहा गया। और इन्होंने फिर से जो है, क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, समय के हिसाब से, नीड के हिसाब से, कि समय के हिसाब से आप में क्या चेंजेस आना चाहिए। जैसे पहले बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लैब्स हर स्कूल में, कॉलेज में नहीं होता था। कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही जो स्ट्रीम में हैं, उन्हीं को एक्सेस होता था कि वो वहाँ जाएँ। लेकिन आज आप देखो हर स्कूल में कंप्यूटर लैब्स हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं अर्लियर स्टेजेस पे, है ना? प्लेग्राउंड्स जो हैं वो बहुत कम होते थे पहले, लेकिन अब स्ट्रेस दिया जाता है कि नहीं, गेम्स के लिए भी आपको बच्चों को एनकरेज करना है ना? एक्स्ट्रा जो जनरल नॉलेज है उसके लिए भी आपको करना है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आनी चाहिए। तो समय के साथ-साथ जो है बदलाव ज़रूरी है। तो
जो सैम पित्रोदा कमेटी थे, इन्होंने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर जो है किया हायर एजुकेशन के केस में, और इन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी सपोर्ट किया कि वो यहाँ आकर के जो है किसी किसी कॉलेज से एफिलिएट होकर के अपना कोर्सेज चला सकती हैं, या फिर यहाँ के कुछ कोलैबोरेशन से जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ सकते हैं। और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज जो हैं कंट्री में खुल जानी चाहिए। तो ये नंबर अभी थोड़ा मुझे लगता है इतनी तो नहीं है, पर हाँ काफी। मैम मैंने भी देखा है। हेलो। हाँ बोलिए। सैम पिथौरा कमेटी यहाँ पे 2007 आपका लिखा हुआ है नोट्स में, हम्म। और जहां तक मैंने एक बार पढ़ा था उसमें 2005, अभी गूगल भी मैंने किया है तो 2005 दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको देख लूंगी, है ना, क्योंकि ये नोट्स भी जी। मैंने किसी बुक से ही बनाए हैं। और इतना पर्टिकुलर वो नहीं होता है। ये कमिटीज जो हैं स्टैब्लिश होती हैं, फिर अपनी रिपोर्ट देती हैं, तो एक 2-3 साल का समय लगता है। तो मोर और लेस यू शुड रिमेम्बर, ऐसा कभी नहीं आएगा कि 2005 और 2007, ऐसा नहीं आएगा। इधर इट इज 2005 और 2007, है ना। तो इतना कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, जस्ट रिमेम्बर मोर और लेस द ईयर, ठीक है, कि किसके आसपास है। जो दूसरा ईयर होगा वो 90s में हो सकता है, 90s में, 50s में हो सकता है, 80s में हो सकता है, इस तरह से आएगा। तो उतना कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस उस पे हमने नहीं देना है, क्योंकि टाइम लगता है ना। एक कमेटी आती है, उसके बाद में स्टैब्लिश हुई है, ये साथ में रिपोर्ट शायद इन्होंने 9 में दी होगी, ऐसा भी हो सकता है ना। चलिए, the next committee was यशपाल committee, and ये जो committees हैं they are not much important, but ठीक है, we'll study somewhat about those committees, about these committees. So यशपाल committee suggested scrapping of all higher education system regulatory or monitoring bodies, and they created a super regulator, a 7-member commission for higher education and research, that is chair CHER, and the deemed university status be abandoned, मतलब इसको उन्होंने खत्म ही किया एक तरह से यशपाल कमेटी ने। So it also recommended that the deemed university status, it should not be given to many, but all the deserving, uh, you can say the deemed universities, be either converted into full-fledged universities or they are scrapped. Like they have to be a very strict criteria to assign or to give the certification to exist for the existence of deemed university. And it also stressed the need for more attention to UG programs and multidisciplinary approach to learning. So basically, it recommended, the reduction of the burden of affiliation of colleges on the universities. Earlier, like many colleges are, they are affiliated to a single university. So it just a burden, because all the colleges, they don't, fulfill the requirements which was set up by the government or by the UGC. And then there was a Sharma committee, which was set up by MM Sharma, Professor MM Sharma, and it deliberated upon the development of science and technology education in India and suggested the establishment of IISE, that is the Indian Institute of Science Education and Research. Here in my is IIS.
Okay, IISER, that is the Indian Institute of Science, Education and Research. So this was the recommendation of Sharma Committee. Then there was Dr. Anil Kakodkar Committee, and it constituted, to recommend some strategies to improve the technical education in the country. Then there was KB Pawar Committee, and it is again constituted by UGC. And this committee recommended four models of PPP, that is the public-private partnership in higher education. So these are the, you can say, the main committees after independence, which are responsible for restructuring or for the improvement of higher education in India. तो एक और कमेटी जो है वो यशपाल कमेटी आई, और इन्होंने ये कहा कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो जो है क्योंकि एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, लेकिन सारे ही कॉलेजेस उन रूल्स रेगुलेशन को, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इन्होंने बहुत सारे रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग बॉडीज का जो बहुत सारे बना दिए गए, तो वो अपनी अपनी तरह से अपने अपने हिसाब से काम करते थे, तो उन्होंने सबको खत्म किया और एक सुपर रेगुलेटर बनाया, 7 मेंबर कमीशन जो है, जिसको चेयर बोला गया, मतलब कि कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। और जो बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी उनको कहा गया कि भाई या तो आप ये चीज़ें मेंटेन करो, और नहीं तो आप की जो रजिस्ट्रेशन है या आपकी जो वैलिडिटी है वो हम खत्म कर देंगे। क्योंकि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज यदि खुल जाती हैं और वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं करती हैं, तो हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन हो जाता है। शर्मा कमेटी जो आई, जिनको लीड किया प्रोफेसर एम शर्मा ने, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, और एक इंस्टीट्यूट बनाया, IISER, that is Indian Institute of Science, Education and Research। और उसके बाद में एक डॉक्टर अनिल काकोडकर की कमेटी आई, जिन्होंने फिर से टेक्निकल एजुकेशन को जो है वो बढ़ावा दिया। फिर पवार कमेटी आई, KB पवार कमेटी, उन्होंने जो है PPP मॉडल वो लेके आए हायर एजुकेशन में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें कुछ जो मनी है, फाइनेंस है, वो पब्लिक से लिया जाता है, और कुछ जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि ओनर्स हैं वो लगाते हैं। तो इस तरह से जो है वो यूनिवर्सिटीज को बनाना और उसको मेंटेन करना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो ये सिंपल आपको याद ही करना है एक तरह से, इसमें कुछ बहुत समझने वाली चीज नहीं है।